My founder today had a very interesting journey. He has traveled from the small lanes of Bihar to the broad expressway of Indian entrepreneurship. He has literally made washing dirty laundry his full time business, wherein not only he established himself as an entrepreneur, but also grew 100 plus micro entrepreneurs around him. I am glad to welcome Arunav Sinha, co-founder of Uclean, Asia's largest laundry franchise, operating over 350 stores in 100 plus cities across India. Welcome, Arunav, to Switching Gears. Thank you so much. We are looking forward to talk to you. Thank you, Subodh. Looking forward to this. So, let's start with your own personal background, Arunav. When we met in March at a wedding, what I remember is you grew up in Jharkhand, then you went to IIT Bombay. So we were 1 year apart, so we never got to meet, but we spent almost the same time frame at the campus. But uske baad ka journey, if you can share, like how was the journey from graduation to starting Uclean? If you can share some light on like what were your experiences like, any pivotal experiences that brought you into entrepreneurship? Sure. So thank you for having me, Subodh. And slight correction from the time that we met. So my growing up years were actually spent in Bihar. I will never say कि I was born and brought up in Jharkhand because झारखंड बना टेक्निकली जब मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 16-17 साल का था, तब जाके फॉर्मली झारखंड वाज क्रिएटेड. तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है या जो ग्रोइंग अप ईयर्स था या द काइंड ऑफ पीयर्स दैट आई हैड और द कम्युनिटी interaction that I had were more related to Bihar. And even today, if you look at it, while geographically the two states are different and there is a geographical demarcation, but a lot of people that are still in Jharkhand would associate themselves as being called Biharis rather than Jharkhandis. So, and fortunately, while it was a difficult childhood, challenging childhood, IIT happened. I worked very hard. उसके बाद IIT में metallurgy and material science मिला, choose नहीं किया. So depending on जो IIT JEE का rank था, उसके basis पे IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में जो available था, उसमें से एक मैंने pick up कर लिया. The only thing that was working in my mind was कि metallurgy and material science का मतलब है direct entry to Tata Steel. And क्योंकि हम जब जमशेदपुर में रहते थे तो these were very challenging years as a child because we were a part of that small population in Jamshedpur जिसके father Tata Steel में नहीं थे. तो my father was a tutor in the government college. तो बिहार गवर्नमेंट की बात है तो एक तो सैलरीज बहुत लो थे, सैलरीज मिलते नहीं थे. While 80% of the city went to Tata Steel or their parents went to Tata Steel. And trust me, 1990s का Tata Steel भी उस समय आज के चंडीगढ़ या आज के पुणे जो ऑर्गेनाइज्ड सिटीज हैं उनसे बेटर था. तो there was a very sharp difference between the kind of life that we had versus the kind of life that people living in Tata had. तो जब IIT में हुआ तो एक बड़ा ड्रीम था कि आई वांट टू गेट इनटू टाटा स्टील. एंड जब मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का टाइम आया मैंने लिया तो मुझे उसके बाद पता चला कि मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का सबसे ज्यादा यूज टाटा स्टील जैसी कंपनी में होता है. तो इट वाज ऑलमोस्ट अ ड्रीम कम ट्रू कि जिसके लिए आईआईटी में गए थे कि जमशेदपुर जाएंगे, टाटा स्टील में काम करेंगे, वहां पर ऑफिसर बनेंगे, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा था. लेकिन लाइक यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कि वंस यू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन and suddenly entered the hallowed portals of IIT Bombay, a lot of things change. So obviously over the next 5 years, I got an exposure to a lot of things. But the biggest learning that I had was that Tata Steel is not the end of the world. वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आपके पास एम्बिशन है तो टेक्निकली आप टाटा स्टील नहीं जाओगे. आपके जैसे सीनियर्स ने मैं सिखाया था कि यार टाटा स्टील नहीं जाना है, कंसल्टिंग करना है, फाइनेंस करना है, स्टार्टअप बनाना है. तो वो सारी बातें दिमाग में घुस गई. And when placements happened, I got into this company called ZS Associates, which was based out of Pune, Chicago-based company hai. But I got into their Pune
डिपार्टमेंट एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज जो सीनियर्स हैं आपके जैसे सीनियर्स ने दिमाग में डाला हुआ था कि कंसल्टिंग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट इन 2008 कंसल्टिंग वाज सुपर हॉट कि अगर जिंदगी में कुछ करना है कुछ बड़ा बनना है तो कंसल्टिंग में जाना चाहिए आप फ्लाइट्स में बैठोगे आप हाई फ्लायर बनोगे 5 स्टार में रहोगे लोगों से मीटिंग करोगे सूट्स पहनोगे तो ये सारी चीजें दिमाग में घुसा दी गई थी लेकिन जब जेडएस में ज्वाइन किया तो पता चला कि वो सब करने में भी 10 साल बाकी है पहले यू हैव टू प्योरली वर्क एट द बैक ऑफिस तो पुणे वाज मोर लाइक अ बैक ऑफिस एंड वी वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ नंबर क्रंचिंग SAS SPSS एक्सेल पे डेटा पे काम करते थे एंड देन वी वुड keep finding insights and keep sending it to our seniors who would then send it to their seniors who would then send it to their seniors और finally में यूएस में जाकर कोई क्लाइंट को प्रेजेंट करता था तो क्लाइंट को क्या प्रेजेंट हो रहा है कौन प्रेजेंट कर रहा है सब कुछ नहीं पता था बस आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता था आप उसको नंबर क्रंचिंग करते थे तो शुरू में अच्छा लगा शुरू में इट वाज वेरी एक्साइटिंग यू आर लर्निंग न्यू टूल्स बट देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई हैड थॉट एंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग and within 6-7 months I started getting really bored of doing all the consulting stuff that I was doing तो मैंने सोचा कि चलो IIM कर लेते हैं क्योंकि IIM करेंगे तो सही एक्चुअल कंसल्टेंट बनने मिलेगा फिर मुझे फ्लाइट में बैठने मिलेगा फिर मुझे क्लाइंट से मिलने को मौका मिलेगा तो आई गेव CAT I got into IIM but my sister was getting married at that point in time और उस समय भी IIM की फीस बहुत हाई थी तो we had to choose between one of the two तो हमने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली सिस्टर्स वेडिंग टेक्स अ प्रायोरिटी सो डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर इट तो फिर मैंने थोड़ा सा आई वाज डिसअपॉइंटेड सो आई अगेन स्टार्टेड स्पीकिंग टू सम सीनियर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड दे सेड कि यार IIT और IIM का कॉम्बिनेशन कोई खास नहीं होता है तुम्हें ना IIT प्लस हार्वर्ड स्टैनफोर्ड ऐसी जगह जाना चाहिए तब यू विल हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग करियर तो मैंने बोला वहां कैसे जाएंगे So there was the senior that was very close to me and eventually went to Stanford. Yeah. And he said कि यार तुम्हें ना एक अच्छा सा story होना चाहिए because Harvard and Stanford don't purely take you and nobody can explain this better than you, Subodh. कि a place like Harvard or Stanford needs a very strong story for you to actually give you an admit. तो मैंने बोला story कैसे बनेगी? So they said कि यार कुछ social angle explore करो. Try to work for people at the bottom of the pyramid. उसकी अच्छी सी स्टोरी बनाओ कि तुमने कैसे ZS जैसी गुड पेइंग जॉब को छोड़ के सोशल सेक्टर में काम किया बिकॉज यू रियली वांटेड टू improve the lives of people at the bottom of the pyramid. And then he introduced me to this company called TechnoServe. Now, TechnoServe was a Bombay-based not-for-profit consulting firm, and I joined it, and they were doing phenomenal work. So all credit to them. It was full of McKinsey consultants जिन लोगों ने 6 महीने का या 1 साल का ब्रेक लिया हुआ था they were working at with TechnoServe they were working with farmers at the bottom of the pyramid so I joined them and I joined almost at 30% of what I was making in ZS but the work was genuinely very exciting used to travel a lot to the villages of India and mainly worked with farmers at the bottom of the pyramid जहाँ पे आप middlemen को remove करते हो and you try to make sure that farmers say bigger companies are directly doing procurement. So worked across multiple projects, worked on soybean, worked on some other projects. But the last project that was very interesting. So there was this company called Vita Coco, which is based out of the US. And it was just a startup at that point in time. And Vita Coco used to procure coconut water from North America and South America, package it into Tetra packs and then sell it to their customers. But North America and South America, they were struggling because the cost of procurement was very high. So they were looking to get into a country like India and directly procure from the Indian farmers and remove middlemen. So this project came to us and the good part was because Naya project tha, the startup was very new. So I got the chance to work directly with the founders of that company. Today, Vita Coco is publicly listed on the New York Stock Exchange, but उस समय बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी. तो I got a chance to understand कि एक फाउंडर नए मार्केट में घुसता है तो क्या सोचता है, उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें नॉन इंपॉर्टेंट हैं, what factors does he consider before evaluating a market and how does he really enter the market. तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस ही हो सकता है where you get international brands into India
एंड बाय दैट टाइम मेरे बैंक बैलेंस भी जीरो हो चुका था. तो ये क्लियर था कि यार टेक्नो सर्विस नॉट समथिंग दैट आई कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो आई डिसाइडेड टू try out startups. So I started a company by the name of Frank Global, where we used to help international brands enter into India and also help international brands expand outside of India. So Frank Global start kiya, got some funding from a couple of companies and quickly started building that brand. So this was my first, I would say, taste of blood when it comes to entrepreneurship. और उसके बाद अगले 5 साल तक बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स के साथ इंडिया एंट्री में काम किया, उनको इंडिया मार्केट समझाना और उसके बाद उनकी इंडिया एंट्री करवाना. दैट वाज प्रीडोमिनेंटली व्हाट वी यूज्ड टू डू. End of 2015 or rather mid of 2015 I got an opportunity. मतलब already 5 साल से I was working with Frank Global and I had gotten bored because same काम था, कहीं का ब्रांड हो उसको इंडिया लेकर आना, उसको इंडिया मार्केट समझाना and finally find them a partner in India. So there was this hotel startup called Tribo Hotels that was just getting started. They had raised some good amount of funding and they were looking for someone who could lead the North India business. So they reached out to me and वो जैसे डायलॉग है गॉडफादर में कि they made me an offer that I could not refuse. तो उन्होंने मॉनेटरली बहुत अच्छा ऑफर दिया. मैं यहाँ पर ऑलरेडी बोर हो चुका था, पक चुका था. So I reached out to my investors and one of the investors was this company called Franchise India. So Franchise India agreed to buy out my entire company because उनके लिए logical fitment था. And I exited Frank Global around mid of 2015 and started with Tribo. Now Tribo हम क्या करते थे, जो आपके छोटे बजट होटल्स हैं who are not able to differentiate. So something similar to what Oyo does in the sense कि आप एक बजट होटेलियर हो, आप एक ऐसे मार्केट में हो जहां पे 400 500 और बजट होटल्स हैं और वो सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं. तो फिर ऐसे होटल्स ट्रीबो के साथ जुड़ेंगे. ट्रीबो वुड हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर सेल्स, बिल्डिंग देयर ऑक्यूपेंसी, मेकिंग श्योर कि उनका एवरेज रूम रेट बढ़ जाए. इन रिटर्न वी वुड एक्सपेक्ट जो होटेलियर है वो अपने कस्टमर्स को डिलाइटेड रखे. Now, as we started expanding, we realized कि the issues were increasing. उसके बाद जब हमने थोड़ा सा forensic audit करा, issues को समझा, तो we realized that the biggest issue, the biggest pain point that a budget hotel traveler today faces is related to laundry. आप थक कर आते हो, आपने मीटिंग करी, आप पहाड़गंज के एक छोटे से होटल में चेक इन करते हो और आप देखते हो कि आपकी बेडशीट गंदी है या पिलो कवर्स गंदे हैं या कर्टन्स गंदे हैं. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. एंड वी रियलाइज दैट 6 out of 10 प्रॉब्लम्स पर्टेन टू लॉन्ड्री. तो मैंने बोला यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इन डिटेल्स एंड ऑनेस्टली माय फर्स्ट इंटेंट वाज टू एक्चुअली फाइंड अ सॉल्यूशन जहां पर एक अच्छे लेवल के वेंडर या 2-3 अच्छे लेवल के वेंडर्स डेवलप करें और उनके साथ ट्रीबो की पार्टनरशिप करा दें. बट द मोर आई रिसर्च, द मोर आई रियलाइज दैट दिस इज अ मैसिव इंडस्ट्री. मतलब 2016 की बात कर रहा हूं, उस समय 35-40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी एंड इट वाज 99.9% अनऑर्गेनाइज्ड. तो पूरी इंडिया में छोड़ो, आपको एक शहर में भी ऐसा वेंडर नहीं मिल सकता था जो आपके 50 होटल्स को सर्विस कर सके, which are distributed across the city. So that's when I thought that यार literally हर सिटी से ये डिस्कवरी आ रही है, हर जगह सिमिलर चैलेंज है that people in budget hotel are not happy because चादर गंदी है, पिलो कवर गंदे हैं, टॉवल्स गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं. तो that's when I felt that there is a divine signal that is coming कि देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है, आज तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा. So that is when I thought that yeah, let's take a bet. We had recently gotten married. We didn't have any kids. So I discussed it with my wife. She also liked the idea, but the two of us could not have jumped together into the fray because घर भी चलाना था. So she gave me the confidence कि मैं घर चला लूंगी. You give it a fight, give it a chance for at least 2 years of your life. और देखते हैं कुछ बड़ा बन सकता है कि नहीं. तो I impulsively resigned from Tribo one fine day. उनका पूरा टाउन हॉल था, पूरी इंडिया से लोगों को बुलाया था because they were celebrating their first anniversary. So I was also there and after the end of that first anniversary I put my paper there itself before going back to Delhi and uske baad we started Uclean. No, that's fabulous. And what I like the most in this journey of yours, Arunav, is two things. One, the idea about Uclean
came from your own professional experiences? Because as they say, it's always the best once you understand the pain point thoroughly. Second, like you said, ki franchisee model has been into your blood, like Trebo Hotels, right? Or even before that, when you were bringing a lot of these brands into India, it seems like you got that experience firsthand, like how franchise model works. How do you help some of these small, let's say in this case, small hotel owners to expand their business, to serve their customers better? So that's what I love the most in your journey, and how it inclined you towards the Uclean model. Absolutely. So specifically talking about Uclean, Arunabh, like you said, laundry business India में अगर देखें तो 99.9% is fragmented, unorganized, right? So what gave you the confidence that there could be some scalable model business that could be built, given the market overall has been very unorganized? Again, there could be two parts. Talking of the B2C, अगर देखें consumer focused, उसमें तो काफी बार ऐसा फिक्स होता है कि generations में होता है कि in especially in smaller towns where I come from, there are some dhobis. तो जनरली आपको पता होता है ये दो शॉप है, उन पे आप जाएंगे एंड लॉन्ड्री के लिए. Probably B2B is little different, where like you said, hotels or some of the other entities who require laundry on a day to day. So two questions. One, where did you focus on within Uclean in terms of your model? And secondly, what gave you that confidence that there could be a scalable business that could be built in this space? So I think you actually answered it in the comment that you made, जहां पर आपने बोला कि the laundry business generational है, and absolutely true. आज अगर आप अपने neighborhood में जाके देखें, जो आपके typical neighborhood markets होते हैं, जहां पर एक generally एक दो grocery की shops होती हैं, एक milk parlor होता है, एक छोटा मोटा salon होता है, छोटा मोटा restaurant होता है, एक pharmacy होती है एक दो, and एक या दो dry cleaning की shop होती है. अगर आप इन लोगों से बात करेंगे तो what one thing that you will always realize, regardless of आप किस शहर में हैं, किस neighborhood में हैं, अगर आप बात करेंगे तो you will realize that the only business that has actually withstood the test of time is your dry cleaner. वो dry cleaner बताएगा कि इसके पहले उसके दादाजी के पास था, फिर दादाजी ने पापा को दे दिया और current generation अभी रन कर रहा है. ये आपको बहुत rarely इंडिया के किसी भी business में मिलेगा. And not only in India, I have seen this in UK, I have seen this in Southeast Asia, कि जो generally dry cleaning business है, वो somehow has withstood the test of time. Maybe जो बंदा वहां पर बैठा हुआ है, he is grumbling, he is not happy कि यार क्या कपड़े धोने का business करते थे मेरे दादाजी, मुझे भी चलाना पड़ रहा है, but business में income है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ. तो this is the biggest beauty of laundry and dry cleaning businesses. One, that it is almost time resistant. दुनिया चेंज हो जाएगी, generations चेंज हो जाएंगे, but वो आपके मोहल्ले की छोटी सी dry cleaning की shop हमेशा वहीं पर रहती है. Generations चेंज हो गए, but वो shop बंद नहीं हुई. बंदा शायद interested हो ना हो, लेकिन उसकी दुकान चल रही है because there is an income to be made. And second thing is, like I said, क्योंकि 99.9% business is still unorganized or was unorganized. Today that number has changed slightly, not a big change, but it is in India, it is still driven by micro entrepreneurs. हर छोटे शहर में, हर छोटे मोहल्ले में एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है जो उस मोहल्ले की ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट्स को केटर कर रहा है. बट नन ऑफ देम हैव रियली थॉट अबाउट मेकिंग दिस अ ब्रांड, कि मैं आपके पड़ोस में हूं, मैंने आपके मोहल्ले में ड्राई क्लीनिंग ऑफर करता हूं, लॉन्ड्री ऑफर करता हूं, मेरी एक छोटी सी फ्रॉग इन अ वेल वाली दुनिया है, मैं उन लोगों को केटर कर रहा हूं, बट आई एम नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट हाउ आई कैन मूव फ्रॉम 1 to 10. मतलब आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन majority of it is driven by that one micro entrepreneur sitting in his shop in some mohalla of India, offering laundry and dry cleaning to his customers who are absolutely and fiercely loyal to him. तो ऐसा बिजनेस बिल्कुल डिसरप्शन के लिए राइप है, जहां पर आपके पास माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, who understand that this business is profitable, this business is income generating, and they understand कि इस नेबरहुड को कैसे क्रैक करना है. तो ऐसे बिजनेस को you can always crack through franchising. So that is where I felt that अगर ये बिजनेस माइक्रो एंटरप्रेन्योर लेड है, जहां पर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस, अपने स्टोर की बैलेंस शीट समझता है,
तो आप ऐसे इंडिया में हजारों माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को टुगेदर लाकर एक कॉमन ब्रांडिंग दे सकते हो एंड यू कैन डिसरप्ट अ वेरी बिग इंडस्ट्री, वेरी सिमिलर टू व्हाट ओला हैज डन इन द car industry or very similar to what Oyo has done or Tribo has done in the hotel industry. So it was very clear कि यहाँ पर आपके पास हार्ड वर्किंग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जो बिजनेस ओन करना चाहते हैं, उनको दिखाया जा सकता है कि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इज वन बिजनेस दैट इज टाइम रेजिस्टेंट। तो आप भी अगर अपना खोलोगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा और लिटरली आप ये अपना बिजनेस अपने बेटे को अपने पोते को गिफ्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अ चेन ऑफ फ्रेंचाइज आउटलेट्स। सो दैट इज व्हाई आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि अगर ये गली मोहल्ले के छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अपनी अपनी बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हैं तो आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू आप भी ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हो who can run a business that is time resistant. Interesting. And how did you start it? Like, one thing is like now you are in 100 plus cities of India, so you have a brand, and there will be micro entrepreneurs who are keen, more than keen rather, to take the Uclean branding and start their business. But how did the starting happen? Like, did you start with your own stores, or was it always about coming up with a brand and starting with the franchise itself? So, हाँ देखिए, मतलब I'll be if I'm honest, I will say that franchising was always there at the back of my mind, even when I had started looking at this business model in general, and even when I was looking at what was happening in other parts of the world, especially in Southeast Asia, it was laundromats everywhere were led by a franchise model. तो ये तो बहुत क्लियर था शुरुआत से ही कि franchising will be at the core of what I'm building. But it could not be on day one because obviously आप जब फ्रेंचाइज बेचने जाओगे तो वो बंदा भी देखना चाहेगा कि एक चलता फिरता सेटअप दिखाओ, उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं वो बताओ। तो फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ स्टोर्स वी वर क्लियर दैट हमें फ्रेंचाइज नहीं कर सकते हैं, अपने आउटलेट्स बनाने होंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग वाज कि क्योंकि आई हैड गिवन अप माय जॉब एंड सडनली आई वाज ऑन अ जीरो सैलरी, तो आई डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट आउट ऑफ माय पॉकेट बिकॉज आई न्यू, क्योंकि अभी ये नहीं पता था कि अब अगले 6 महीने तक पैसे नहीं बनेंगे या अगले 3 साल तक पैसे नहीं बनेंगे, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो आई डिसाइडेड दैट वी विल हैव टू रेज सम काइंड ऑफ अ सीड इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली जब मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को जो मेरे नेटवर्क में थे उनको रीच आउट करना शुरू किया तो एक कॉमन थीम थी कि एवरीबडी लाइक द आइडिया कि हाँ यार सही बोल रहे हो, कोई तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन नोबडी वांटेड टू बी दैट गिनी पिग। यार हाँ दे देंगे, हम पैसे दे देंगे, तुम पहले 2-3 आउटलेट चला लो, उसके बाद जितने पैसे लेने ले लो, 10 आउटलेट लगा दो, 20 आउटलेट लगा दो, लेकिन थोड़े दिन बाद आना। तो आई स्पोक टू क्लोज टू 25-30 इन्वेस्टर्स एंड आई रियलाइज कि एक कॉमन थीम है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग इंडस्ट्री साइज को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कोई भी पहला पैसा नहीं लगाना चाहता है। तो I decided to change my strategy. I started reaching out to these neighborhood dry cleaners. और मैं उनको समझाने लगा कि सर आज आप ड्राई क्लीनिंग कर रहे हो, लेकिन आप भी रियलाइज कर रहे हो कि आपकी सेल्स गिर रही है बिकॉज दुनिया बदल रही है। अब दुनिया कैसे बदल रही है? बिकॉज आप जो नेबरहुड की बात करते हो या नेबरहुड ऑपरेटर्स की बात करते हो, दे आर जनरली रनिंग ड्राई क्लीनिंग आउटलेट्स। नाउ ड्राई क्लीनिंग इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू योर ट्रेडिशनल या मोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, जहां पर मे बी जड़ी वर्क है, मोटी वर्क है, कपड़े महंगे हैं, ऐसी जगहों पे ड्राई क्लीनिंग ज्यादा होती है। बट इंडिया इज ऑल्सो चेंजिंग। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आई गिव इट एवरीवेयर, दैट आई कम फ्रॉम बिहार। नाउ माय मॉम इज समवन हु लव्स साड़ी, सो मच सो कि मैंने आज तक उनको जिंदगी में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहने देखा है। वो सोती हैं साड़ी में, जागती हैं साड़ी में, इवेंट्स पे जाती हैं साड़ी में, स्कूल जाना हो साड़ी में जाएंगी। बट when you contrast her with my wife, now we are married for 8 years, 8 साल में मेरी वाइफ ने शायद 8 बार साड़ी पहनी होगी। एंड दिस इज समथिंग दैट यू गाइज विल आल्सो फील कि जो करंट जनरेशन है उसमें लोग एथनिक वेयर या एक्सपेंसिव कपड़े कम पहनते हैं। इट इज बिकमिंग वेरी ओकेजन लेड कि आपके घर में शादी है तभी आप कोई पुरानी साड़ी निकाल के पहनोगे या आप अपना शेरवानी पहनोगे, कुर्ता पहनोगे, अदरवाइज वी आर ऑलवेज इन कैजुअल्स। नाउ कैजुअल क्लोथ्स डोंट नीड ड्राई क्लीनिंग। तो यही चीज मैं इन ड्राई क्लीनर्स को समझा रहा था कि देखिए सर, ड्राई क्लीनिंग की दुनिया खत्म हो रही है, लॉन्ड्री की दुनिया बाहर आ रही है। आजकल हम लोग 99% कैजुअल कपड़े पहनते हैं जिसको ड्राई क्लीनिंग नहीं लॉन्ड्री चाहिए होती है।
तो बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स से मिला, भगा दिया बहुत लोगों ने कि तुम हमें अपना बिजनेस सिखाओगे, फलाना फलाना। लेकिन फाइनली एक बंदा मिला जिसके 5-6 आउटलेट थे दिल्ली और गुड़गांव में, और उन्होंने कहा कि यार मैं रेडी तो हूं, मतलब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा आपको, जो लॉन्ड्री सेटअप लगाने में, यूक्लीन लगाने में जो पैसे चाहिए 20-25 लाख वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप चलाओ, सारे चलाने के खर्चे आपके होंगे, और मुझे आपको एक रिटर्न देना पड़ेगा। अगर मैं आपको 20-25 लाख देता हूं तो मुझे 3 साल में एटलीस्ट 50% का ग्रोथ बना के दो, और अग्रीमेंट वैसा साइन करो कि आपका जो भी खर्चा होगा डजेंट मैटर, मुझे महीने के महीने कुछ मिलते जाएंगे। तो यह टिपिकल डेट फंडिंग थी, इन मतलब अनऑर्गेनाइज्ड अड़तिया डेट फंडिंग की, जहां पर एक प्राइवेट लेंडर मुझे पैसे दे रहा है। बट बिकॉज वी डिडंट हैव मेनी ऑप्शंस, 2 महीने 2.5 महीने से समझ में आ गया था कि सीड फंडिंग भी रेज करना मुश्किल है, तो वी स्टार्टेड इन दिस मैनर। उनके 2 आउटलेट्स थे ऑलरेडी, उनको हमने यूक्लीन में कन्वर्ट कर लिया, एंड वी स्टार्टेड रनिंग इट वेयर वी वर मैनेजिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड गिविंग हिम अ मंथली रिटर्न। तो ऐसे तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब 6 महीने बाद खुद शुरू हो गई मुझे खुजली कि अब फ्रेंचाइजिंग करनी है। बिजनेस तो समझ में आ गया है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं समझ में आ गया है, लेकिन अब इसको बड़ा करना है तो मुझे फ्रेंचाइजिंग करनी है। अब फ्रेंचाइजिंग करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टोर था, कोई ब्रांड नहीं था, कोई ब्रांडिंग नहीं थी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज लोग बोल रहे थे कि यार पहले आप अपना तो चला लो, आपके तो स्टोर भी नहीं है, एक छोटी सी वेबसाइट है, सोशल मीडिया भी नहीं है, कौन आपको जानता है। तो आई चेंज स्ट्रैटेजी एंड यूजिंग माई नेटवर्क आई, क्योंकि इंडिया में 3 चीजें बहुत बिकती हैं, एक तो आपका क्रिकेट, दूसरा आपका बॉलीवुड, तीसरा आपका पॉलिटिक्स। तो मुझे लगा कि यार एक ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और जिसके बोलने से फ्रेंचाइजिंग शुरू हो जाए। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड देन वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू माय नेटवर्क। उसके थ्रू सोहा अली खान एंड कुणाल खेमू से मीटिंग हुई। फॉर्चुनेट मीटिंग थी कि सोहा अली खान वाज अ यूजर ऑफ लॉन्ड्रोमैट्स ड्यूरिंग हर लंदन डेज। तो 7 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, तो उसने काफी ज्यादा लॉन्ड्रोमैट यूज किया था। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, यार चलो कोई तो इंडिया में भी ट्राई मार रहा है। एंड वी केम टू एन अंडरस्टैंडिंग विथ हर, जहां पर बहुत बेयर मिनिमम पैसों में उन्होंने अग्री कर लिया कि आई विल बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। मुझे आप कुछ खास पेमेंट मत दो, कुछ होगा आपका। तो इट ऑलमोस्ट बिकेम अ परफॉर्मेंस लिंक्ड प्लान कि अगर यूक्लीन बड़ी बन गई तो उनको कुछ मिलेगा, अदरवाइज शी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हर टाइम एंड एफर्ट एट अ रिस्क। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया। वी स्टार्टेड कॉलिंग यूक्लीन अ ब्रांड बाय सोहा अली खान। तो हमने क्या किया, ये बोल दिया कि यूक्लीन की फाउंडर सोहा अली खान है एंड अरुणाब को फाउंडर है, बाकी टीम है, लेकिन ये पूरा ब्रांड सोहा अली ने बनाया है। अब जैसे ये मार्केट में अनाउंस हुआ, ट्विटर पे सोहा अली खान ने 2-3 ट्वीट डाल दिए, और इंस्टाग्राम पे कुणाल खेमू ने पोस्ट डाल दिया कि मैंने अपना लॉन्ड्री ब्रांड स्टार्ट किया है, पार्टनर से जुड़ना चाहता हूं। उसके बाद जो फोन कॉल्स आने शुरू हुए, नाउ एवरीबडी सडनली वांटेड टू बी यूक्लीन फ्रेंचाइजी, कि हमें सोहा अली खान का पार्टनर बनना है, हमें कुणाल खेमू का पार्टनर बनना है। So that is how we started getting our first few franchise partners. Interesting. That's the real entrepreneurship. I love how you kind of brought in, like, there are 3 things that sell in India. And the other common thread, you know what, it looks like we have to bring in like Soha Ali Khan on our podcast. The last one we were shooting was with Miko. Miko is a children's learning robots. So what I recall is even for Miko, Soha Ali Khan is their brand ambassador. Okay. No, that's fabulous. Fabulous, Arnav. Thanks for sharing it. And going back to some of these early days, like, how did you put together a team for it? Did you have some co-founders? I heard a couple of times, looks like your wife and you started it together, is it? So my wife was our moonlighting co-founder. When we started this, obviously दोनों resign नहीं कर सकते थे. So she decided that she was working on, she was heading the digital marketing for the website part of HCL. तो HCL है, मेगा कंपनी है, तो ऑब्वियसली 5 दिन ही काम करना पड़ता है, वो भी फिक्स्ड आवर्स में है कि भाई 9 से 5 ही काम कर रहे हो, उसके बाद आपको कोई काम करने नहीं बोलेगा। तो उसके बाद यूक्लीन का काम शुरू होता था। तो शी वॉज इन अ सेंस एथिकली मूनलाइटिंग। अपने HCL का टाइम वो HCL को देती थी, बट उसके बाद शाम से शी बिकेम अ Uclean employee, and she's someone who's very creative. So Uclean का आप जो भी branding, creativity देखेंगे, logo देखेंगे, it has all been designed by her. But for almost 1 year, she continued to be a
moonlighted co-founder जिनके लिए Uclean was not the only source of income. And जब 1-1.5 साल में हमारी cash flow शुरू हो गई, तो that is when she actually resigned and formally joined Uclean in a full-time role. So in terms of co-founder, it's just her and me. And while I handle the sales and operations part of the business, she is more on the product and the marketing side of the business. और शुरुआत में जो हमने टीम बनाई थी, and fortunately some of them are still with us, we had handpicked them from the laundry industry, because obviously laundry was not something that I understood or she understood, especially when you talk about the nitty-gritties कि फैब्रिक को कैसे समझना है, कौन सा प्रोसेस किस समय यूज होना चाहिए, स्टीम आयरनिंग कैसे होती है. तो all this we had to have team members who understood operations inside out. So that is what we leveraged. We used their skill sets, and good thing is that 3 of them are still around from the initial founding team who built the operations. And tech के लिए हमने एक IIT के जूनियर को ही पार्ट टाइम पे लिया था, एंड बिकॉज जूनियर था तो बहुत कम में उसने बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में he actually set up the entire tech architecture and product for us. Got it. And that's the true tenet of an entrepreneur, right? Like bringing together the right skill sets to get it all started. And deep diving into franchisee business, Aruna, अगर आप थोड़ा इस पे लाइट डालेंगे कि फ्रेंचाइज मॉडल कैसे चलता है, व्हाट इज इट, what does a franchisee owner need to kind of give and what do they get in return, right? जैसे आप कुछ मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में कैसे हेल्प करते हैं एज अ फ्रेंचाइज प्रोवाइडर, एंड फ्रेंचाइजी का क्या रोल रहता है, फ्रेंचाइज प्रोवाइडर का क्या रोल रहता है? ठीक है, तो जो भी सुन रहे हैं उसके लिए आई जस्ट डीमिस्टिफाई एंड थ्रो अ फ्यू टर्म्स. तो जो फ्रेंचाइज प्रोवाइडर है, लाइक सुबोध सेड, सो फ्रेंचाइज प्रोवाइडर इन द टेक्निकल जार्गन इज नोन एज द फ्रेंचाइजर. सो देयर इज अ फ्रेंचाइजर जो कि आपको फ्रेंचाइज दे रहा है, एंड यू आर द फ्रेंचाइजी अगर आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं. नाउ इन फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री ऑल्सो आपको मल्टीपल फ्रेंचाइज मॉडल्स मिलेंगे. सो द मोस्ट कॉमन मॉडल विच इज व्हाट यूक्लीन फॉलोज is called the franchise owned franchise operated business, जिसका मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपका होगा, और उसके बाद जो मंथ ऑन मंथ एक्सपेंसेस भी आएंगे वो आपके होंगे. ब्रांड इज देयर टू सपोर्ट यू, ब्रांड इज देयर टू गिव यू देयर ब्रांड नेम, बट अल्टीमेटली दैट बिजनेस इज 100% owned and operated by you. The profit and loss are entirely yours, and the brand will charge a certain royalty from you. So this is, I would say, अगर आप इंडिया में अगर 100 फ्रेंचाइज आउटलेट्स देखते हैं तो 95 फ्रेंचाइज आउटलेट्स विल बी रनिंग ऑन द फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल. बट इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, लाइक फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर फ्रेंचाइजी सिर्फ इन्वेस्ट करता है और उसके बाद सारा ऑपरेशंस कंपनी मैनेज करती है, एंड देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग या मिनिमम गारंटी दैट द फ्रेंचाइजी गेट्स फ्रॉम द कंपनी. इसके अलावा कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड आउट मॉडल्स भी हैं, जहां पर कंपनी ने बिजनेस सेटअप किया हुआ है और वो किसी यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को बोलता है कि आप ये बिजनेस अब चलाओ, सारा खर्चा हमने कर दिया है, बिजनेस इज रेडी, यू हैव टू रन इट एंड यू हैव टू गिव अस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट एवरी मंथ. तो वो मॉडल भी है, बट सबसे पॉपुलर आपका फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल है, विच इज व्हाट यूक्लीन फॉलोज, या बिगर ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, बास्किन रॉबिन्स, सागर रत्ना. अगर आप इनके मॉडल्स भी देखेंगे, या किड्जी प्री स्कूल, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग इज लाइक फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड. तो इसमें जनरली क्या होता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूक्लीन का एग्जांपल दूंगा तो अराउंड 18 lakhs you have to invest initially in terms of the machinery, in terms of the cost of fabrication of the entire store and the franchise fee. So all this has to be invested upfront by the franchisee before his store goes live. और एक बार स्टोर लाइव हो गया तो मंथ ऑन मंथ जो एक्सपेंसेस हैं, विच इज योर सैलरीज हो गए, रेंट हो गया, पैकेजिंग मटेरियल, डिटर्जेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारा फ्रेंचाइजी का एक्सपेंस होगा, एंड द ब्रांड विल सपोर्ट यू. पहली चीज तो ब्रांड आपको ब्रांड नेम दे रहा है, द राइट्स टू यूज योर ब्रांड नेम or rights to use their brand name at a given location to run your business. And on top of that, operation support हो गया. जैसे in case of Uclean, we also understand that manpower recruitment is not easy, especially blue collar manpower जो कि laundry कर सके, dry cleaning कर सके,
ऐसे बंदे एक नॉर्मल इंसान के लिए ढूंढना आसान नहीं। तो हमारे केस में वी ऑल्सो टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, कि वो जो 3 लड़के 4 लड़के आपके स्टोर पर होंगे जो पूरे बिजनेस को रन कर रहे होंगे, वो बंदे हम आपको ढूंढ कर देंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे। प्लस ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग हमारी जिम्मेदारी है। तो फेसबुक का जो यूक्लीन का पेज है या इंडिविजुअल स्टोर्स के पेजेस हैं, दैट इज मैनेज्ड बाय अस। द टेक्नोलॉजी इज आवर्स, वेबसाइट, एप्लीकेशन, बैकएंड सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ हम देते हैं एट नो एडेड कॉस्ट टू द franchisee, and in return we charge a monthly royalty which is 7% of the sales. So similar models है, मतलब you can pick up any brand, Baskin Robbins, Kidsy, Gold's Gym, जो जितने franchise businesses हैं सबके similar models हैं. These numbers and percentages could be changed, but the model more or less remains the same. Got it. And like you mentioned, Arnav, जैसे एक franchisor, एक franchisee. So for any potential entrepreneur, aspiring entrepreneurs, how does one choose कि मैं एक फ्रेंचाइजी ले लूं क्योंकि उसमें भी ग्रोथ आप बहुत कर सकते हैं, या मैं एक फ्रेंचाइजर बनूं? मतलब रिस्क वाइज, रिटर्न्स वाइज कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? लाइक हाउ शुड वन डिसाइड व्हिच पाथ टू टेक? तो देखिए, फ्रेंचाइजर इज एज गुड एज स्टार्टिंग अप ऑन योर ओन, राइट? कि मुझे आज एक स्टार्टअप का आइडिया आया तो मैं उसको बिल्ड करूंगा, और बाद में अगर वो फ्रेंचाइजेबल आइडिया है तो मैं उसको फ्रेंचाइज कर दूंगा। तो ऑब्वियसली द रिस्क्स आर मच मोर हायर इन द सेंस कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। मे बी मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैंने आइडिया को कहीं और इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है, बट अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो सारा रिस्क मेरा है। जो मैं इनिशियल कैपिटल लगा रहा हूं वो डूब भी सकता है, वो चल भी सकता है। तो आई वुड से फ्रेंचाइजर इज इन दैट सेंस हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड गेम, कि अगर मेरा बिजनेस चल गया तो फिर तो मैं फ्रेंचाइज कर दूंगा आगे, मैं इसको बहुत बड़ा कर दूंगा, एंड आई विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लाइक टुडे इफ यू लुक एट यूक्लीन, it is my brand and it has become very big, but technically I'm not the only founder. आज इंडिया में अगर मेरे 350 फ्रेंचाइजीज हैं तो ये 350 को-फाउंडर्स हैं मेरे, बिकॉज लिटरली हर बंदा अपने मोहल्ले में, अपने जिले में फाइट मार रहा है कि उसका यूक्लीन चले। तो ही इज ऑल्सो इक्वली इन्वेस्टेड। मे बी उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, वो 20 लाख में बिजनेस शुरू कर लिया, बट आज अगर किसी इंडिया के किसी मोहल्ले में, जैसे नौहर है राजस्थान में, एक बहुत छोटा सा गांव, वहां पर यूक्लीन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है लास्ट 2 महीने से, तो इसका मेजॉरिटी क्रेडिट उस फ्रेंचाइजी को जाता है। वो जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर हैं प्रगट सिंह जी, वो वहां बैठे हुए हैं, वो फाइट मार रहे हैं, अपने मोहल्ले में सबको बता रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं। तो उनका इन्वेस्टमेंट कम है, 18-20 लाख में सेटअप हो गया, एफर्ट डाल रहे हैं और उनका एक रिटर्न आएगा, एंड दैट रिटर्न विल बी गुड। लेकिन मेरे लिए एज अ बिजनेस जितना ये बड़ा होता जाएगा, मेरा रिटर्न भी बहुत हायर होगा। So I would say risk-wise, it is a significantly higher risk game. It is as good as starting your startup, and you never know what is going to happen 2 years down the line. But in terms of reward also, it is a much bigger game. अगर चल गया तो literally the sky is the limit. Franchisee in that sense is a low risk model because किसी ने already वो business बनाया हुआ है, उसने अपने 10 स्टोर चलाए हैं, उसको पता है कि वो बिजनेस कैसे चलता है, कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारा ज्ञान वो आपको देगा। आप जब उसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बताएगा कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, कौन सी मार्केटिंग वर्क करेगी, कौन सी मार्केटिंग नहीं वर्क करेगी। तो आपको एक बंदा है जो कि हमेशा हैंड होल्ड एंड गाइड करेगा और ट्राई करेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। मतलब आपको सिंपल स्टैट्स दूंगा अमेरिका के, विच इज अ डॉक्यूमेंटेड स्टैट्स, कि अमेरिका में 95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, जबकि ओनली 40% ऑफ द फ्रेंचाइजीज फेल। So success rate is 5% in starting up on your own versus 60% if you take a franchise. Got it. Makes sense. And starting from one proof of concept store से लेके अभी आप जैसे 350 stores चला रहे हैं इंडिया में, तो how's the journey been, especially in terms of what do you see as you reflect कि what have been the success ingredients for Uclean, and were there any specific challenges that you faced across this journey, like any 1 or 2 big challenges that you might have faced? Can you share those? देखिए, इंडिया में what I've realized is कि 2 तरह के लोग आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। एक है who come in with what I call an investor mindset, कि मेरे पास 50 लाख रुपए रखे हैं बैंक में, मैं उसमें से 20 से 25 लाख रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स होगा।
कि मेरा ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं उसमें अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जैसे ऐसे मूड चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे ही मेरा बिजनेस भी इंपैक्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक साइड बिजनेस रहे, वहां से कुछ इनकम मुझे आते रहे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सो आई कैन गिव मनी, आई कैन इन्वेस्ट माई कैपिटल, बट आई हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अदर एंगेजमेंट्स। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर माइंडसेट वाले, जो कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे टीम दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन मैं बिजनेस में नहीं आ पाऊंगा, मैं गल्ले को नहीं संभाल सकता, गल्ला मेरा टीम मेंबर संभालेगा। सेकेंड है जो कि ऑपरेटर माइंडसेट से आते हैं, जो बोलते हैं कि सर मुझे तो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे पास 25 लाख ही हैं, मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस बिजनेस में डाल दूंगा, लेकिन मेरे लिए यही बिजनेस सब कुछ है, ये चल गया मैं चल गया, ये चल गया मैं खत्म, मेरी फैमिली खत्म। तो ये होते हैं ऑपरेटर माइंडसेट वाले, जो बोलते हैं हमें स्टोर मैनेजर नहीं चाहिए, स्टोर पे तो हम बैठेंगे या हमारी वाइफ बैठेंगी, गल्ला हम संभालेंगे, गल्ला कोई और नहीं संभालेगा। तो ऐसे लोग बिजनेस में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, टाइम, एफर्ट, मनी, वो आपसे लड़ेंगे भी ज्यादा। जो इन्वेस्टर माइंडसेट वाले होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो आपसे आर्ग्यू करें कि यार मेरा स्टोर नहीं चल रहा है या मुझे और मार्केटिंग सपोर्ट दो। लेकिन ऑपरेटर माइंडसेट वाला आपके पीछे पड़ जाएगा कि यार मेरा सेल आज यहां पहुंचा है, मुझे अगले महीने यहां पहुंचना है, मुझे उसके लिए सपोर्ट चाहिए, मुझे अरुणाभ से कॉल करवाओ, मुझे XYZ करवाओ, बट मुझे चाहिए। तो आई हैव रियलाइज जो सेकेंड कैटेगरी वाले हैं, दे विल ऑलवेज in a franchise business be so much more profitable, and they will have such a higher return on their investment compared to the people who will come in with purely with an investor mindset. And जब हमने शुरुआत में फ्रेंचाइजिंग करी तो obviously the only target that we had in mind is numbers, कि यार हमें 50 स्टोर करने हैं, 100 स्टोर करने हैं। But now that we have reached a certain stage, we have realized that we have to be more selective. तो हम जब किसी फ्रेंचाइजी को ऑनबोर्ड लाते हैं तो हम आजकल बहुत क्लियरली बोलते हैं कि दिस बिजनेस विल नीड योर टाइम इन एडिशन टू कैपिटल। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो यूक्लीन इज पॉसिबली नॉट द राइट काइंड ऑफ बिजनेस फॉर यू। आसान नहीं है, इट इज नेवर इजी टू से नो टू मनी ऑन द टेबल, बट वी ट्राई टू डू दैट बाय सेइंग कि सर अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, ये सिर्फ पैसा आप देने वाले हो, तो मेरे हिसाब से बिजनेस आपके लिए सही नहीं है। सो टुडे आई वुड से वी हैव दैट लग्जरी थोड़ा सा, जहां पर हम थोड़ा सा मना कर सकते हैं। एंड एक बार हम 1000 स्टोर बन जाए, 1500 स्टोर बन जाए, तो माय ओनली सजेशन एंड बिगेस्ट लर्निंग इज दैट in a franchise business always partner with people who come in with that operator mindset and not just an investor mindset. So I don't know, one question, as you are starting and scaling this business, तो जैसे जब हम कोई existing business में एक brand बनाते हैं, तो especially the business that disrupts the local businesses, तो business models rather, तो कई बार एक resistance होती है। जैसे when Akhil from No Broker came in, so he shared some anecdotes कि how some of the brokers initially were quite annoyed with the setup. तो इसमें कुछ interesting ऐसे कोई anecdotes हैं, or maybe some challenges that you might have faced from the local dhobis या people who were into washing laundry business. So did you face any kind of obstacles from any local businesses? तो थोड़ा बहुत आया था, आई विल नॉट डिनाई कि नहीं आया, बट व्हाट वी आल्सो डिड इज कि हमने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय धोबी महासमाज, हमने काफी स्टार्टिंग में ही उनके साथ इनफॉर्मल पार्टनरशिप करी, क्योंकि मतलब दो चीजें हो रही है। आप देखोगे जो ट्रेडिशनली कम्युनिटी है, they are increasingly becoming disenchanted with the laundry work. तो आप देखोगे जो इंडियन धोबी कम्युनिटी है, especially the younger generation, they are becoming disenchanted with the laundry work because it is typically not glamorous. कि आप मतलब ज्यादा ग्लैमर नहीं है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। तो यूक्लीन से हमने एक तो ऐसे लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, स्पेशली धोबीज को बताना शुरू किया कि यूक्लीन में एक तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ग्लैमर ज्यादा है, आई वुड नॉट से कि बरिस्ता जैसा ग्लैमर है, वैसा नहीं है। बट सेकेंडली वी ऑल्सो स्टार्टेड प्रमोटिंग द फैक्ट दैट अगर आप आज देखेंगे तो आपके जो इंडिया में आपके सोसाइटी के बाहर जो लोकल आयरन मैन है, जो वहां पर कपड़ों की आयरनिंग करता है, उसकी अगर आप महीने की सैलरी की एस्टिमेशन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो पूरे महीने
धूप धाम पानी पत्थर जो भी हो रहा हो, ही इज स्टिल देयर, स्टिल ट्राइंग टू फाइंड न्यू कस्टमर्स। और वो हर दिन बहुत फाइट मारता है, बारिश हो रही हो धूप है, उसको वहां पर खड़ा रहना पड़ता है, और पूरे महीने के एंड में वो 10-12 हजार से ऊपर नहीं कमा पाता है। तो हमने ऐसे आयरन मैन को अपने यूक्लीन में लाना शुरू किया, जहां पर एक तो उनको मंथली गारंटीड इनकम है कि आपको महीने के 15-16 हजार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर स्टोर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको इंसेंटिव भी मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, आप एक एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में काम करते हो, जहां पर आपको बिजनेस डेवलपमेंट की कोई सरदर्दी नहीं है। आप हायर हो गए, आपको स्टीम आयरन टेबल प्रोवाइड कर दिया गया, पूरा स्टोर एयर कंडीशनड है, तो आप धूप में नहीं खड़े हो या आप बारिश में नहीं खड़े हो, एंड आपको बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करना है। प्लस आपको एनीवेयर बिटवीन 16 से 20 हजार रुपए मंथली मिलते हैं फॉर डूइंग योर जॉब। तो हम आपको ऑलमोस्ट 50-60% हायर सैलरी गारंटी कर रहे हैं, प्लस आपको एक बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू डू योर जॉब। तो इसके कारण आज अगर आप देखोगे तो यूक्लीन के जितने भी स्टोर्स हैं, उसमें जो आयरन मैन है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी नए बंदे को लाकर आयरनिंग की ट्रेनिंग दी है। ये सारे आयरन मैन धोबी कम्युनिटी से ही पिकअप किए गए हैं और इनको वेरियस यूक्लीन स्टोर्स पर डिप्लॉय किया गया है। तो इससे हमें काफी ज्यादा, आई वुड से, जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमने वो रेजिस्टेंस काफी कम देखा। जनरली लोकल बिजनेसेस में, लाइक यू वेरी राइटली सेड, कि जब आप कुछ डिसरप्ट करने की कोशिश करते हो या नया कुछ बनाने की कोशिश करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग छोटे प्लेयर्स हैं, मॉम एंड पॉप ऑपरेटर्स, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट फॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसे इंस्टेंसेस हैव बीन वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। Got it. And this is very interesting how you went about connecting with the association and the existing जो iron men है उनको आपने इसमें engage किया. Very interesting. And I think one more question comes to mind is like as you grew across India, जैसे आप north में शुरू किए, फिर east में आए, south, west, तो any variations across India, क्योंकि India is diverse in terms of adoption of the laundry business, right? कि कस्टमर कैसे अडॉप्ट करते हैं गोइंग टू अ लॉन्ड्री शॉप, लॉन्डमार्ट वर्सेस वॉशिंग एट होम। तो कुछ एनी काइंड ऑफ वेरिएंसेस और डिफरेंसेस दैट यू माइट हैव सीन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स या रीजन्स? काफी ज्यादा, तो मतलब इनफैक्ट it also changed, the dynamics also change when you move from a metro to a non-metro, when you move from a non-metro to a small village. So काफी ज्यादा dynamics हमारे change होते थे। तो आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, डायनामिक्स आल्सो चेंज इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कन्वे द मैसेज टू द लोकल कस्टमर। जैसे मैं बिहार से हूं, तो बिहार में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्क करता है मार्केटिंग में आपकी रिक्शा, ऑटो रिक्शा पे या साइकिल रिक्शा पे आप जो अनाउंस करते हुए जाते हो। जैसा कि आपने वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था कि बहुत सिमिलर है कि वहां पर अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपको एक छोटा सा रिक्शा बुक करना पड़ेगा, उस पे लाउड स्पीकर लेकर एक बंदा बैठ जाएगा, वो गाना गाते हुए जाएगा पूरी सोसाइटी में, लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि अब उनका यूक्लीन एक पड़ोस में आ चुका है। तो इनफैक्ट आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन इटसेल्फ काफी ज्यादा चेंज होती है शहर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। हमारा सबसे सक्सेसफुल यही रिक्शा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहा है इन ऑल द सिटीज ऑफ बिहार वेयर वी आर प्रेजेंटेड। लेकिन जैसे जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गए, एंड टुडे वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यूक्लीन के आज 37 स्टोर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वहां पर हमने रियलाइज किया कि वहां पर आपको जो उनके स्पेशलाइज्ड कपड़े हैं उनके क्लीनिंग की बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप असम में जाएंगे तो वहां पर दो पार्ट है, एक को कहते हैं अपर असम, दूसरे को कहते हैं लोअर असम। अब अपर असम के लोग उनके मेखाला चादर से बहुत इमोशनल है। जब शादी होती है तो लड़की को मेखाला चादर दिया जाता है, आप घर आते हो तो आप मेखाला चादर लेके आते हो, आप किसी को इज्जत देना चाहते हो तो आप उसको मेखाला चादर देते हो, और मेखाला चादर इज अ वेरी फाइन फैब्रिक, तो उसकी क्लीनिंग रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट्स। तो वहां पर जब हम प्रमोट करते थे तो हम प्रमोट करते थे कि इस दुकान पर मेखाला चादर भी शाइनिंग न्यू क्लीन किया जा सकता है। तो वहां पर ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करी। सेल्स पिच होता है कि यार आप अपना 6 दिन आप काम करते हो, आप अपना संडे क्यों बर्बाद करना चाहते हो, आप यूक्लीन को दे दो, यहां पर यूक्लीन थोक के भाव में लॉन्ड्री बाय द किलो करके आपको आपके डोर स्टेप पे कपड़े डिलीवर कर देगा। तो मतलब इसमें, और आई थिंक यही माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रेंचाइजिंग का सबसे बड़ा पावर है कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, जो फ्रेंचाइज है आपका, वो अपने मार्केट को आपसे बेहतर समझता है। तो आपको अपना, you have to keep your eyes and ears open to listen to what he says,
उसके इनपुट्स लीजिए एंड देन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट पर्टिकुलर मोहल्ला, दैट पर्टिकुलर जिला. Got it. Very insightful, Arnav, and I can see the level of depth that you have achieved across different markets. Uh, like, what are your future plans? Could you share something? Are you looking to expand further in India? Are there any international plans as well? तो इंडिया तो देखिए, इंडिया इज लाइक एन ओशियन, और अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है. इफ यू लुक एट इट, हमारा विजन है, एंड इट्स नॉट एन अनरियलिस्टिक विजन कि इंडिया में हर नेबरहुड में, बिकॉज इंडिया इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, हम इतने सारे लोग हैं कि इंडिया के हर नेबरहुड में, हर मोहल्ले में एक यूक्लीन की रिक्वायरमेंट है, और हर मोहल्ला एक यूक्लीन को प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबली सर्वाइव करा सकता है. तो मेरी जो विश लिस्ट है या मेरा जो ड्रीम है वो तो ये है कि इंडिया के हर नेबरहुड में एक यूक्लीन होना चाहिए. और मैं सिंपल से अगर मैथमेटिक्स दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 5500 यूक्लीन की अपॉर्चुनिटी है. आज वी आर ओनली एट 350, तो वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस. वी आर ओनली अबाउट 7-8% ऑफ वेयर वी शुड आइडियली बी. तो इंडिया इन इटसेल्फ बहुत बड़ा है, और हमें 10 साल के अंदर 5500 पहुंचना है, जैसे भी करके पहुंचना है. और साथ ही साथ जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट इमर्ज हो रही है वो हमारे लिए है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, विच इज पॉपुलरली नोन एज द मीना रीजन. बिकॉज नॉर्थ अफ्रीका में आप देखोगे तो नॉर्थ अफ्रीका टुडे इज एग्जैक्टली वेयर इंडिया वाज अबाउट 10 years बैक इन एवरी वे. मतलब countries have come out of south, while southern part of Africa is still struggling, but आप northern part of Africa देखेंगे तो countries have come out of their poverty. वहां पर नए नए ब्रांड्स जा रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स जा रहे हैं, and they are finding a very high adoption. So we absolutely believe कि laundry and dry cleaning in North Africa is also at its tipping point. और अब वहां पर रिक्वायरमेंट है कि ब्रांड्स जाके माइक्रो एंटरप्रेन्योर से पार्टनर करें, अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर से पार्टनर करें और उनको इनेबल एंड एम्पावर करें. तो 2023-2024 मीना रीजन इज आल्सो a market that we want to enter into. We have already entered Nepal and Bangladesh. तो जो अपना सार्क रीजन है वो तो हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इज समथिंग दैट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट. Interesting. And one thing I'm curious is, like, when we look into some of the consumer brands, let's say McDonald's, right, or Burger King, like a lot of these American brands, when they started expanding internationally, तो उनका एक ऑलरेडी ब्रांड अवेयरनेस एंड एक वैसा था कि कंज्यूमर को है कि हमें मैकडी खाना है, तो एक उनको वो बेनिफिट हुआ. आपके कॉन्टेक्स्ट में यूक्लीन में कुछ ऐसे सिनर्जीज होती हैं व्हेन यू गो इनटू अ न्यू मार्केट. जैसे इंडिया में आई कैन रिलेट कि जैसे इंडिया में आप एक नई सिटी में जाओगे तो ऑलरेडी एक ब्रांड रिकग्निशन उसका बेनिफिट होगा. तो डू यू सी एज यू एक्सपेंडेड इनटू सार्क या फ्यूचर में जैसे मेना रीजन में, आर देयर सम सिनर्जीज दैट यू वुड सी ऑफ हैविंग अ ब्रांड ऑलरेडी? देखिए, मतलब आर even when we enter a new city or new mohalla in India, the promise is not the brand. The promise is कि हमने कोई नया बिजनेस क्रिएट नहीं किया है. जो धोबी का बिजनेस है वो इंडिया में ऐतिहासिक है, किसी को नहीं पता कि इंडिया में पहला कपड़ा कब धुला था. सो देयर इज नो सच डेट. तो धोबीज हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम. इनफैक्ट इंडिया में कास्ट सिस्टम में भी धोबी एक कास्ट है, which is a recognition कि कितना बड़ा बिजनेस है. तो आर ओनली प्रॉमिस इज कि आज तक जिस तरह से आपको आपकी लॉन्ड्री करके दी जा रही थी, वेदर इट इज क्वालिटी, वेदर इट इज टर्न अराउंड टाइम, और वेदर इट इज ट्रांसपेरेंसी, वेयर एज अ कस्टमर आपके पास विजिबिलिटी नहीं होती थी कि आपके महंगे कपड़े कहाँ पर हैं, कैसे धोए जा रहे हैं, क्या डिटर्जेंट यूज हो रहा है. वी वॉन्ट टू चेंज दिस. तो हमारा प्रॉमिस ये रहता है कि यूक्लीन is building a culture of transparency. We believe that as a consumer, you deserve to see what is happening with your expensive clothes. You deserve to see where are they getting washed, how are they getting washed, what kind of detergent, what kind of chemicals are being used, and very importantly, how are they being handled. तो मुझे लगता है the promise will always remain the same, whether I'm talking about a small mohalla of India or I'm talking about entering a small mohalla of Tanzania. मेरी कमिटमेंट सेम रहेगी. ब्रांड बिल्डिंग विल कंटिन्यू. होपफुली वी विल आल्सो वन डे बिकम द बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स ऑफ द लॉन्ड्री इंडस्ट्री. वी आर स्टिल वेरी फार फ्रॉम इट, बट वो एक सपना है, दिल में एक तमन्ना है. लेकिन किसी भी नए टेरिटरी में स्ट्रैटेजी यही है कि वी वांट टू
show you what you deserve to see, because your clothes are increasingly getting more expensive. So you deserve to know how are they being handled. Amazing. And our best wishes for that expansion plans. Arnav, I'm sure you'll do well. But before we wrap up, I have like a question for you as an entrepreneur at an individual level. Like you have spent more than a decade now building startups. तो आपके एक्सपीरियंस से what have you liked the most being a founder and what do you dislike? I think disliking में I would always say entrepreneurship is addictive. तो मतलब क्योंकि मैंने पहली बार एक वेंचर किया, फिर मैं ट्रीबो गया, काफी अच्छी सैलरी थी, काफी अच्छा रोल था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल था, नॉट अ लॉट ऑफ इंटरवेंशन. एंड आई वुड से द ओनली रीजन आई कुड नॉट कंटिन्यू वाज दैट वो एंटरप्रेन्योरियल बग केप्ट बिटिंग मी कि यार अपना कुछ शुरू कर लो, अपना कुछ शुरू कर लो. देयर वाज नथिंग रॉन्ग, ट्रीबो वाज डूइंग वेल, आई वाज डूइंग वेल एट ट्रीबो, आई वाज गेटिंग पेड वेल, बट मैंने छोड़ दिया out on a whim. I just resigned one day, and for that I'll blame the addiction of entrepreneurship. कि आपको एक बार काट लिया और अब मैंने मतलब forget, I was lucky कि भाई Frank Global मुझे exit मिल गया, but I've seen cases where there are people who tried once, tried twice, tried thrice, and वो 5-6 साल उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत पैसे लगा दिए, एफर्ट लगा दिया, they have still not got any return, and now they're doing their fourth round of entrepreneurship, and I don't blame them. मतलब मैं समझ सकता हूँ what kind of mindset they are going through, and that is why they have started the fourth time or the fifth time. And this is one challenge with entrepreneurship, that it is very addictive. The good thing is I think वो cliche है, but you have that chance to create a lot of impact in terms of आप जितने लोगों को जॉब दे सकते हो, उनके कितने लोगों की फैमिलीज आज अगर यूक्लीन की बात करें तो क्लोज टू 2000 people are employed by Uclean at the corporate level and our store levels combined together. तो आज 2000 ऐसी फैमिलीज हैं, यहाँ लाख ऐसे लोग हैं जिनकी probably livelihood में Uclean उनको सपोर्ट कर रहा है. So nothing can be more satisfying, honestly, nothing can be more touching to the heart than the fact that you are directly or indirectly impacting the lives of at least lakh people in India together today. Something that I don't know I could have done with other company or not. तो ये मेरे लिए हमेशा से I think सौभाग्य वाली बात है. As an entrepreneur, you are really fortunate if you are able to create a mass impact and directly impact the lives of I'm not only talking about consumers ज़्यादा हैं, and I'm pretty hopeful they are happy with our services. तो उससे ज़्यादा खुश हूँ ये लाख लोग जो हमारे साथ employed हैं directly or indirectly, उनकी families और वो whose daily bread is coming from Uclean. So nothing can be more gratifying than that. Wonderful. And yours is indeed a very inspirational story. Arnav, you entered a field which is not seen as a very glamorous field to start with, but you have been able to create an impact that now everyone is looking up to. Uclean. So kudos to Gunjan, yourself, and the team, and our best wishes as we expand further. And thank you so much for being so transparent and for sharing the level of insights that you did. Thank you, Subodh. And it is also very gratifying that we met only about 3-4 months back at a wedding, and we stayed in touch. And thank you so much for giving me the chance to come on the podcast today and share the story of Uclean. I will only hope that more and more people will hear this story. And we have a very special campaign called the Uclean Pathshala that we are running right now, where we are recruiting girls and boys from the smallest villages of India. We are training them at our cost. We are giving them free food. We are giving them free travel. But more importantly, we are also guaranteeing them jobs. So I also want to use this podcast to, अगर कोई आप में से कोई ऐसा है जिनके जो ऐसे लोगों से टच में है, छोटे शहरों में, छोटे गांव में, जिनको आज जॉब की आवश्यकता है, तो हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड यूक्लीन पाठशाला, जहां पे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं. आपको आपके गांव से यहाँ लाने का, हमारे हेड ऑफिस लाने का खर्चा यूक्लीन उठाती है. आपको 15 दिन हमारे हेड ऑफिस में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ट्रेन किया जाता है. उन 15 दिनों में आपके खाने का सारा खर्चा कंपनी उठाती है, आपके रहने का सारा प्रबंध हम करते हैं,
और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपको गारंटी देते हैं कि एक बार आपने 15 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो इंडिया के किसी न किसी स्टोर में किसी न किसी रोल में आपकी जॉब गारंटीड है, वहां पर आप काम कर सकते हैं. एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म बिकॉज हमें जेन्युइनली जरूरत है लोगों की जो काम करना चाहते हैं. एंड आई होप कि इस तरह से हम और लोगों को हेल्प कर सकें. This is amazing, Arunav, and I'm sure this platform will also help spread the message, and we ourselves will spread it. And definitely, like, we would love to bring you back into a second episode and like to learn a little bit more about the Pathshala as well. But Thank you. thank you. Thank you so much. Thank you.